Good morning, dear students. In the previous class, we have discussed about the function of the renal tubules. We said that what is the role of proximal convoluted tubule? As we know that PCT is lined up by cuboidal epithelium with microvilli, its major function will be absorption of most of the nutrients and the water. Then after was the region of loop of Henle, which has a descending limb and an ascending limb, and they are involved in less reabsorption, but their major role was keeping a higher concentration of the interstitial medullary fluid. The third part, that was DCT, it was involved in the conditional reabsorption of water and salts as well as secretion of H+, K+ and ammonium ions. Lastly, the collecting tubules are for the reabsorption of the water and some amount of urea. So in that way, we have discussed about the function of all the parts of the nephron, that is of the renal tubules. Now we are heading towards a new topic, that is mechanism of concentration of the filtrate. मैमल्स जो होते हैं उनके पास एक एबिलिटी है कि वो अपनी यूरिन को कंसंट्रेट कर सकते हैं, राइट? एंड दिस कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, मतलब यूरिन का कंसंट्रेट करना मतलब less water and more amount of electrolytes present in the urine. So how to concentrate this urine? That is the role which is played by the loop of Henle and the vasa recta. Students, if you remember, what was vasa recta? Vasa recta was emerging from efferent arteriole. Efferent arteriole will be circling or surrounding the PCT and DCT, which was known as peritubular capillaries. Out of these peritubular capillary, there was one such capillary which will be running parallel to the loop of Henle. And this one, which was parallel to the loop of Henle, was known as vasa recta. So loop of Henle and vasa recta plays an important role to concentrate the urine. So we are mentioning the first point, that mammals have an ability to concentrate the urine. यूरिन को कंसंट्रेट करना मतलब टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, राइट? कई बार क्या होता है कि पूरा दिन या हमने पूरे दिन में बहुत ही कम पानी पिया है, तो हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है ड्यू टू डेली एक्टिविटीज ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है. अब इसे मेंटेन करने के लिए जो भी हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट है उसे कंजर्व करना पड़ता है. पर यूरिन फॉर्मेशन तो एक इनएविटेबल प्रोसेस है, क्योंकि यूरिया फॉर्मेशन होते ही रहने वाला है. इसीलिए क्या होता है कि यूरिया एलिमिनेट तो होता है, बट विथ लेस वाटर एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स आर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड एट दैट टाइम, राइट? और आपने अगर देखा होगा तो वो यूरिन का कलर भी कुछ ज्यादा ही येलोइश कलर की होती है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ही ज्यादा होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी हमारी बॉडी कंसंट्रेटेड यूरिन भी बनाती है जब हमारा वाटर इनटेक बहुत ही कम होता है. तो ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने का जो काम है वो किसका होता है? लूप ऑफ हेनली एंड वासा रेक्टा. ऑब्वियसली वासा रेक्टा कौन से नेफ्रॉन्स के साथ एसोसिएटेड है? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स. इसलिए हम किन की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स. ओके, सो लूप ऑफ हेनली एंड वासा रेक्टा plays an important role in it. यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम इन दोनों का है, लूप ऑफ हेनली का एंड वासा रेक्टा. These two are involved in the mechanism to concentrate the urine. Now the flow of the filtrate in the two limbs of loop of Henle is in opposite direction. मतलब filtrate यहाँ पे किस डायरेक्शन में जा रहा है? डिसेंडिंग, राइट? क्योंकि वो डिसेंडिंग लिम्ब है तो डिसेंडिंग जा रहा है, और यहाँ पे द फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट इज असेंडिंग, राइट? सो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट in
the two limbs of Henle's loop is in opposite direction. फिल्ट्रेट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज फ्लोइंग इन द डिसेंडिंग लिम्ब एंड हियर इट इज फ्लोइंग इन द असेंडिंग लिम्ब. सिमिलरली द फ्लो ऑफ ब्लड, क्योंकि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में क्या होएगा, ब्लड, क्योंकि इन्फ्रंट आर्टेरियोल से ब्लड निकल के इट विल एंटर इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड देन इनटू द वासा रेक्टा. सो फ्लो ऑफ ब्लड, flow of blood in the two limbs of vasa recta is also opposite, right? जो फ्लो है ब्लड का वो भी कैसा है, अपोजिट है. कहां पे फ्लो हो रहा है, वासा रेक्टा में, तो ये फ्लो भी अपोजिट है. तो इसे क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है काउंटर करंट. काउंटर करंट मतलब अपोजिट जो फ्लो हो रहा है वही, ठीक है. सो दिस कंडीशन इज नोन एज काउंटर करंट. काउंटर करंट मैकेनिज्म मतलब जब फिल्ट्रेट और ब्लड दोनों ही अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो हो रहे हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है काउंटर करंट. सो टू थिंग्स एसेंशियल फॉर कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने के लिए, टू कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट proximity of loop of Henle and vasa recta. फर्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज प्रॉक्सिमिटी, मतलब लूप ऑफ हेनली और वासा रेक्टा जो है वो दोनों बहुत ही एक दूसरे से नजदीक लोकेटेड है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट बोथ ऑफ देम शुड बी वेरी क्लोज लाइन टू ईच अदर. एंड सेकेंड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज द काउंटर करंट फ्लो. सेकेंड थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज द काउंटर करंट फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट एंड द ब्लड in loop of Henle as well as in the vasa recta. So these two things are responsible for maintaining high concentration of interstitial medullary fluid. Both of them are responsible for maintaining a higher concentration of interstitial medullary fluid. अब interstitial medullary fluid मतलब ये जो रीजन है ये हुआ कॉर्टेक्स, और ये जो नीचे का रीजन है ये हो गया मेड्यूला. मेड्यूला का इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब लूप ऑफ हेनले के बाजू में आपको जो जगह दिख रही है, ये जो प्लेस होगी उसे कहा जाएगा इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी रीजन. और यही इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी जो रीजन है वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, इंटरस्टिशियल मेड्यूलरी फ्लूइड, जिसका कंसंट्रेशन ऑलवेज कैसा रखना होता है, हाई. सो इट हैज टू कीप ऑन मेंटेनिंग अ हाई कंसंट्रेशन, एंड this high concentration will be maintained by the action of the loop of Henle and vasa recta. So we are further going to discuss about the same. So as we said that the proximity means the closeness with which the loop of Henle and the vasa recta are located, as well as the flow of the filtrate and the flow of the blood in the opposite direction. Both these things are responsible for maintaining a high osmotic concentration in the interstitial medullary fluid. Interstitial medullary fluid जो है उसका concentration बढ़ रहा है from 300 milliosmoles per liter, इसे कहा जाता है milliosmoles per liter. 300 milliosmoles per liter से बढ़ के कितना हो रहा है, 1200 milliosmoles per liter. So nearly 4 times the concentration is going to increase from cortex to the medulla. तो यहाँ पे
द सब्सटेंसेस जिसकी वजह से ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, ऑस्मोलैरिटी मतलब क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट्स, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स, राइट। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन जो बढ़ रहा है, दैट इज मेनली ड्यू टू टू कंपोनेंट्स, इट इज वन NaCl and second is the urea, right? So the increase in osmolarity is due to two components, NaCl and urea. These two are the main ones which are keeping a high concentration of the medullary fluid. अब NaCl और यूरिया हाई कंसंट्रेशन मेंटेन कर रहे हैं, बट हाउ इज इट पॉसिबल, राइट? वो कैसे हो रहा है, इसे समझने के लिए लेट अस लुक एट द डायग्राम फर्स्ट। इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट दिस इज द proximal convoluted tubule. This lower part is the descending loop of Henle and this is the ascending loop of Henle. Similarly, this is the region of vasa recta which is being drawn over the side just for your understanding. Actually ये यहीं पे बहुत ही closely located parallel होगा to the loop of Henle. अगर आपको नेफ्रॉन का पहला डायग्राम जो हमने बनाया था वो याद हो तो हमने यहाँ पे ही उसके पैरेलल में लूप ऑफ हेनली के पैरेलल में वासा रेक्टा ड्रॉ किया हुआ था। मतलब लूप ऑफ हेनली और वासा रेक्टा बहुत ही क्लोज लोकेटेड होते हैं, पर एक्चुअली जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने वासा रेक्टा को यहाँ पे साइड पे ड्रॉ करके बताया है, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू सॉल्ट बट इम्परमिएबल टू वाटर। ये जो असेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल किसके लिए होता है, सॉल्ट के लिए, पर वाटर के लिए क्या है, इम्परमिएबल, जिसकी वजह से सॉल्ट्स जो है दे आर गोइंग टू एग्जिट आउट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब। दैट इज द रीजन NaCl is going to exit out. अब जैसे जैसे NaCl बाहर आ रहा है वैसे अंदर क्या रह जाएगा, फिल्ट्रेट में वाटर रह जाएगा, राइट। So as the NaCl comes out, the filtrate is going to get dilute. मतलब पहले 900 की osmolarity, फिर 600, फिर 400, फिर 300। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से सॉल्ट बाहर निकल रहे हैं और वाटर जो है वो अंदर रह रहा है फिल्ट्रेट के अंदर ही, एंड देयरफॉर ऑस्मोलैरिटी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज होके 300 एंड 200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर हो रही है। ये NaCl के बाहर आने की वजह से ही मेड्यूलरी फ्लूइड का कंसंट्रेशन बहुत ही हाई रहता है, बट some amount of this NaCl is going to enter into the descending limb of the vasa recta. So NaCl which is exiting out over here is going to enter into the descending vasa recta. Same way, some amount of NaCl is definitely going to be exited out of the vasa recta. तो इसका रीजन, इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा बहुत NaCl बाहर निकल गया, ये NaCl जो है वो यहाँ से वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में एंटर हुआ, एंड सम अमाउंट ऑफ NaCl अगेन एग्जिट्स आउट ऑफ द वासा रेक्टा। NaCl के बाहर आने की वजह से क्या हुआ, मेड्यूलरी फ्लूइड का कंसंट्रेशन कैसा रहेगा, हाई, क्योंकि यहाँ पे NaCl बाहर निकल रहा है जिसकी वजह से मेड्यूला जो है इट बिकम्स मोर कंसंट्रेटेड, सम अमाउंट ऑफ इट इज गोइंग टू एंटर इनटू वासा रेक्टा बैक एंड सम इज गोइंग टू एग्जिट। तो एग्जिट होने की वजह से बाहर मेड्यूलरी फ्लूइड का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ गया, कैसा हो गया, 300 से 1200 मिली ऑस्मोल्स। अगर बाहर कंसंट्रेशन हाई है then and only then water can exit out from the descending limb of loop of Henle. Why? क्योंकि अगर बाहर कंसंट्रेशन डाइल्यूट है तो कैन वाटर मूव फ्रॉम अ डाइल्यूट टू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन? नो, वाटर ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से वाटर जो है वो बाहर क्यों आ रहा है, ओनली बिकॉज मेड्यूला का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है। तो दैट इज द की रोल प्लेड बाय whom? NaCl. If NaCl is getting out from
ascending limb. Some amount of NaCl is entering into vasa recta, but again some is exiting. That indicates that it is responsible for keeping higher medullary concentration. Medullary interstitial fluid का concentration ज़्यादा हो तो ही water reabsorption होगा. अगर water reabsorb हो रहा है, इसका मतलब concentration वापस क्या हो रहा है? 1200 milliosmoles. Not only from the descending limb, water gets reabsorbed from the collecting tubules also. Why? Because of higher concentration of the medullary fluid, right? Water का reabsorption कब possible है? जब medullary fluid का concentration high हो तभी. Otherwise it is not possible कि water reabsorb हो. और अगर water reabsorb नहीं होगा तो यूरिन लास्ट में जो रिलीज होगा वो कैसा होगा? डाइल्यूट. यहाँ पे जो यूरिन रिलीज होगा दैट विल हैव अ कंसंट्रेशन ऑफ 1200 milliosmoles per liter. Why the concentration increase? Because water is getting reabsorb. Water reabsorb क्यों हो रहा है? क्योंकि मेड्यूला का कंसंट्रेशन हाई है. मेड्यूला का कंसंट्रेशन हाई क्यों है? क्योंकि NaCl जो है that is getting released into the medullary fluid which maintains high osmotic concentration. Secondly, there will be some amount of urea also which will be entering into the loop of Henle. But similarly, some amount of urea is again sent back by the collecting tubule into the medullary fluid. So urea जो बाहर release हुआ that is also maintaining high osmotic concentration. Okay. So हम NaCl के बारे में लिख देते हैं that NaCl is exits out of, किसमें से exit कर रहा है? From the ascending loop of Henle, and then it is going to enter into descending vasa recta. And from again exit out of ascending vasa recta. अब ascending vasa recta में से निकल रहा है, thereby increases the medullary fluid concentration. Medullary fluid concentration high है तभी ही water reabsorb हो रहा है. कहाँ से? From the descending loop of Henle and the collecting duct. So water gets reabsorbed from the descending loop of Henle and collecting duct. And as the water gets reabsorbed, as water reabsorption हो रहा है उसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम वाटर हमारे ब्लड में जा रहा है, इसलिए फिल्ट्रेट कैसा होता जाएगा? कंसंट्रेटेड, राइट? सो फिल्ट्रेट गेट्स कंसंट्रेटेड और उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर. 1200 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर मतलब हमारा जो फिल्ट्रेट था वो 300 ऑस्मोलैरिटी का था, जबकि जो यूरिन है वो 1200. सो हम बोल सकते हैं कि यूरिन इज अबाउट 4 times more concentrated, 4 times more concentrated than the filtrate. फिल्ट्रेट से 4 बार ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा यूरिन, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड रोल जो प्ले कर रहा है यूरिया, that will be released by the collecting tube और collecting tubule. collecting tubule से जो यूरिया रिलीज हुआ वो यूरिया कहाँ पे है? मेड्यूलरी फ्लूइड में, इसलिए यूरिया की वजह से भी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, राइट? सो यूरिया एंड NaCl both are responsible for making higher concentration of medullary fluid. मेड्यूलरी फ्लूइड में हाई कंसंट्रेशन है तभी ही वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है. And therefore this mechanism is the counter current mechanism
which is very important topic to understand over here, that how the urine can be concentrated. क्योंकि normally जो urine होती है वो dilute होती है, but in the case of water, less, if there is less water in your body, right, or you are losing a large amount of water, it is very important to conserve the water in the body, and at that time our kidneys develop a mechanism to concentrate the filtrate.